Good morning. Today in this video we are going to learn about adjectives. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. मतलब noun के साथ noun का जो meaning समझाने के लिए उसमें कुछ add करते हैं noun के साथ या pronoun के साथ कुछ add करके बोलते हैं तो वो adjective हो गया. Okay, something added to the noun is adjective. Now kinds of adjectives. There are many kinds of adjectives are there. So we just learn one by one. Okay. Adjectives of quality. Quality means it tells what kind of. Okay. ये noun किस quality का है? What is the noun over here? Honest boy. So boy is a noun. So what kind of a boy? Honest boy. सच्चा बच्चा मतलब सच बोलने वाला बच्चा. Okay. Now easy question. What kind of question? Easy question. Okay? मतलब हर कोई उसका आंसर दे सकते हैं. Adjectives of quantity. Next one is adjectives of quantity. Quantity means it tells about how much. Okay? Because it is uncountable noun, so we say about the quantity. Like salt. Salt is uncountable noun. So what we say? Some salt. कुछ नमक, थोड़ा सा नमक. Okay? मच हेल्प क्या है? सहायता. ओके, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते तो उसमें हम क्या बोलेंगे? थोड़ा हेल्प मतलब ज्यादा हेल्प. मच हेल्प, ज्यादा हेल्प किया उसने मेरा. ठीक है. सो सम सॉल्ट एंड मच हेल्प. तो ये सम और मच जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर वी यूज विद द काउंटेबल नाउन्स टेलिंग हाउ मेनी. तो वो हम काउंट कर सकते हैं. लाइक mistakes. How many mistakes? 2 mistakes. Okay. गलतियां, 2 गलतियां की. Many children. How many children? Many children. बहुत सारे बच्चे. ठीक है. Now demonstrative adjectives. Demonstrative means to used to point out something. कुछ ऐसे point out करके बताने के लिए. These books. कुछ books है यहाँ पे टेबल के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे? These books. तो हम उसको point out करके बोल रहे हैं these books. So these are demonstrative adjectives. These, such dresses, this boy, that boy. ये सब क्या है? Demonstrative adjectives है. Now interrogative adjectives. It is used to ask questions. Okay, like which shoes, whose purse. So which is interrogative adjective. Okay, whose also interrogative adjectives. Now possessive adjectives. Telling whose, वो किसका है बताते हैं. ठीक है. किसके it belongs to who, ये किसके लिए है, किसके पास है, ये किसका है वो सामान. Our house. Whose house? Our house. हमारा घर. Her clothes. उस लड़की के कपड़े. Okay. Proper adjectives. Proper adjectives it is derived from the proper noun. So it is called proper adjectives. प्रॉपर नाउन से जो डिराइव हुआ मतलब ओरिजिन हुआ है जहाँ से आया है वो उसकी वजह से उसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ठीक है. लाइक कंट्री के नाम से, कॉन्टिनेंट्स के नाम से या स्टेट्स के नाम से आता है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोला जाएगा. लाइक इंडियन पीपल, गुजराती पीपल, ग्रीक लिटरेचर. ग्रीस के जो लिटरेचर है उसको ग्रीक लिटरेचर बोलते हैं. ठीक है. आसाम की जो रेसिपीज है तो हम क्या बोलेंगे? आसामीज रेसिपीज. तो वो आसाम क्या है? हमारे इंडियन स्टेट है. ठीक है. वहां की जो रेसिपीज, स्पेशल डिशेस जो होते हैं तो हम बोलते हैं आसामीज रेसिपीज. नाउ लिसन, इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. सो लाइक प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. सी G and A are capital over here. Okay. Now indefinite adjectives. Indefinite adjectives means it do not denote exact number. ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते. तो क्या जैसे सम पीपल, कितने जने हैं वो नहीं बताते. सम पीपल, कुछ लोग. एनी लॉ, कौन सा लॉ? कोई भी लॉ. ठीक है. कोई भी कानून. नाउ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स मींस यूज्ड टू एम्फसाइज. एम्फसाइज मींस टू स्पेसिफाई मोर. ओके. माय ऑन कंट्री. इंडिया इज माय ऑन कंट्री. ऑन कंट्री मींस मेरा अपना देश है. The very words I spoke
जो वर्ड्स मैंने जो बोला है, जो एग्जैक्ट वही वर्ड्स, ओके। तो वो ये ऑन या वेरी क्या दिखाता है, उसको स्पेसिफाई करके बोल रहे हैं, ओके। नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. Number can be further classified as cardinal numbers, ordinal numbers and distributive adjectives. Okay. Now cardinal number. Cardinal number means the exact number. So what is the number we spoke? Okay. Adjectives of number can be further classified as cardinal number. Cardinal means exact number. Whatever number we spoke. Okay. 40 rupees. कितने रुपए? 40. $80. How many dollars? $80. Okay. Now ordinal. Ordinal means it shows the order or rank. उसका मतलब वो दिखा रहे हैं कौन से ऑर्डर पे है या कितने रैंक पे है, वो पोजीशंस बताते हैं. लाइक फर्स्ट पोजीशन, I got first position in extremely competition. Okay. तो फर्स्ट पोजीशन, कौन सा पोजीशन मिला? फर्स्ट पोजीशन. थर्ड फ्लोर. थर्ड फ्लोर मीन्स तीसरा माला. ओके. सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऐसे फ्लोर्स डिवाइड किया हुआ है, तो वो उसका वो लेवल है, ठीक है, उसका वो रैंक है. सो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है ये कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स ईच वन ऑफ अ नंबर, लाइक एवरी बुक, हर एक बुक, ठीक है, एवरी बुक. नाउ ईच मेंबर, हर एक बंदा, ठीक है, वो जो फैमिली में है या सोसाइटी में है, तो ईच मेंबर. नाउ टेकन वन एट अ टाइम. अगर ऑप्शन है उसमें से एक जने को लेना, जैसे कि ऑप्शन देते हैं नाइदर कैंडिडेट, दो तीन कैंडिडेट से उसमें से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ. नाइदर कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन या सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट. नाउ आइदर प्लान, टू प्लान्स वर देयर बट आइदर प्लान, कोई भी प्लान ले सकते हैं आप, ठीक है, उसमें से फर्स्ट प्लान या सेकेंड प्लान दोनों ही ले सकते हैं, तो ऑप्शन है वहां पे. ओके. सो दीज एडजेक्टिव्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, लाइक एवरी, ईच, नाइदर, आइदर. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. So these are the kinds of adjectives. Now we are going to learn about formation of adjectives. Now we are going to learn about formation of adjectives. How we form? From nouns. Okay. From nouns we can form adjectives like honor, honorable, beauty, beautiful, slave, slavish. We have to just add the suffix with that noun. Now from verb, quarrel, quarrelsome, talk, talkative. From other adjectives like black, blackish, red, reddish. With the help of some common suffixes, I just enumerate here. लेकिन इसमें पूरा नहीं है, सिर्फ मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप बुक में से रीड कर लें. लाइक एबल, एडवाइस, एडवाइजेबल. उसमें देखो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. जैसे एडवाइस ई में खत्म होता है, तो ई ओमिट करके एबल, advisable. अब इबल, terror, terrible. Slight differences in the spelling. Okay, that you have to keep it in your mind. Accident, accidental. Like table, tabular. Ick, icy, ick. Angel, angelic. Ish, book, bookish. Ive, eve. Express, expressive. Less, care, careless. ly ऐड करके brother, brotherly.ous, us. adventure, adventurous. y ऐड करके anger, angry. some, quarrel, quarrelsome. दूसरे others, affection, affectionate. west, western. Now we are going to learn about degrees of comparison. Adjectives of quality have 3 degrees of comparison, like positive, comparative and superlative. Okay, for example, easy, easier, easiest. Means जो adjectives होते हैं, adjectives of quality, जो quality बताता है जो adjective का,
वो हम 3 तरह के से यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव मीन्स उसका रूट फॉर्म मतलब सेम एज इट इज रहेगा, इजी पॉजिटिव। कंपैरेटिव उसमें कुछ ऐड करते, सफिक्स ऐड करते, जैसे इजी इजियर, इजीएस्ट, तो लाइक टॉल टॉलर, टॉलेस्ट, क्विक क्विकर, क्विकेस्ट। ओके, सो जब कोई कंपैरिजन नहीं करते तो हम कौन सा यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। नो कंपैरिजन देन वी यूज पॉजिटिव डिग्री। लाइक दिस इज एन ओल्ड मैन, ठीक है, दिस इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड इज adjective, so this is in which form now? Positive form. Okay, now comparing two things, when we are comparing two things, जो दो चीजों की तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। कौन सा कंपैरेटिव डिग्री? मीन्स सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। उसके साथ than भी यूज करते हैं, than is used along in the sentence. After this comparative form of adjective we use the word than also. Okay, this man is older than the other. Why than is used? क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मतलब दूसरे इंसान से, दूसरे जो आदमी है उससे ये आदमी जो है ज्यादा बुजुर्ग है, ठीक है। दिस मैन इज ओल्डर देन द अदर। नाउ कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा चीजों का जो कंपैरिजन होता है तब हम तीसरा फॉर्म यूज करते हैं एडजेक्टिव का। कौन सा है वो? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स जो सबसे अच्छा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। ओके, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, दिस मैन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। मतलब वहां पे जितने भी लोग जने थे, जितने भी आदमी खड़े थे, उसमें वो ये जो मैन है वो सबसे पुराने हैं, सबसे बुजुर्ग है, ठीक है। दिस मैन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन यूज करते हैं जब दो जनों के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। जो हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं लेकिन उसको करेक्टली यूज करना भी हमें आना चाहिए। उसके लिए कुछ एग्जांपल से यहाँ पे देती हूँ मैं। जैसे सम, ये एडजेक्टिव है, वो कैसे यूज करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। इफ वी आर एग्री विथ समथिंग तो वो जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड सम बुक्स, मैंने पहले से ही बुक्स खरीद ली है, कुछ बुक्स खरीद ली है, ठीक है। नाउ एनी, एनी इज ऑलवेज यूज्ड विथ नेगेटिव सेंटेंस। इफ वी आर नॉट एग्री विद एनीथिंग तो वो नेगेटिव, अगर हम कुछ मना कर रहे हैं तो हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। आई हैवंट परचेज्ड एनी बुक्स, मतलब मैंने अभी तक कोई भी बुक खरीदा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। आई हैवंट परचेज्ड एनी बुक्स, मतलब मैंने अभी तक कुछ भी खरीदा नहीं है। Now, much we use as much means a large quantity, okay, but it is used with uncountables, like much ink, much sorrow. Now, many is used for large number of things. It is countable things, okay, like many books, many years. Little is used with uncountables, like little help, little hope, okay. Now few is used with countables, like few books, few friends. Now little have three forms: little, a little, the little. Let us see what is the difference between these three, okay. Little means almost none, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। little, I have little money, I can't buy chocolates for you. I have little money, I can't buy chocolates for you. मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं खरीद सकता। A little means at least some, थोड़ा सा है। I have a little money, I can afford to buy a bar of chocolate with it. मतलब बहुत ज्यादा नहीं खरीद सकता मैं क्योंकि मेरे पास
थोड़े से पैसे हैं, उससे मैं एक चॉकलेट का बार तो दिला ही सकता हूँ. आई कैन अफोर्ड टू बाय अ बार ऑफ चॉकलेट विद इट. द लिटिल मीन्स द होल, दो वेरी लिटिल, मतलब बहुत थोड़ा सा ही पैसे हैं लेकिन वो पूरा मैं यूज कर सकता हूँ. आई बॉट अ बार ऑफ चॉकलेट विद द लिटिल मनी आई हैव. सो आई बॉट अ बार ऑफ चॉकलेट, मैं बार ऑफ चॉकलेट लेकर आया हूँ. किससे? विद द लिटिल मनी आई हैव. ओके, तो ये समझ में आ गया. लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन, अ लिटिल मीन्स एटलीस्ट सम, द लिटिल मीन्स इट इज वेरी लिटिल बट वो पूरा पैसे यूज करने के लिए रेडी है. आई बॉट अ मतलब यूज कर लिया, जितने मेरे पास पैसे जो थोड़े से थे उसको मैंने पूरा यूज कर लिया. ओके, नाउ फ्यू, नॉट मेनी, in fact almost none. Few means almost none. Okay, few friends visit me so I am often lonely. मतलब कुछ फ्रेंड्स मेरे आते हैं इसलिए मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ. मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं आते मुझसे मिलने. Few friends visit me so I am lonely. So I am often lonely. मतलब कोई नहीं आता. A few, at least some. A few means at least some, थोड़ा सा है. Sometimes a few friends visit me and we have a nice time. बहुत गिने चुने फ्रेंड्स हैं मेरे, इसलिए वो आते हैं तो हम एक अच्छा टाइम पास कर लेते हैं. ओके, द फ्यू, ऑल ऑफ देम, दो वेरी फ्यू. तो द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ देम, दो वेरी फ्यू, बहुत कम है लेकिन वो सब. द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिट मी वेरी रेयरली. बहुत कम फ्रेंड्स है वो मुझे मतलब बहुत रेयरली मुझसे मिलने आते हैं. बहुत कम दिनों में ही आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते, बहुत धीरे मतलब बहुत कम ही आते हैं, कभी कभार आते हैं वो लोग मुझसे मिलने के लिए. एल्डर, एल्डेस्ट, इट इज यूज फॉर क्लोज फैमिली मेंबर्स. माय एल्डर सिस्टर, ब्रदर और डॉटर हैज वन द बेस्ट एथलीट्स अवार्ड. एल्डर मीन्स बड़ा. ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स है उनके लिए हम यूज करते हैं एल्डर या एल्डेस्ट, हमसे जो बड़े होते हैं. ओके, एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन. तो एल्डर हम कंपैरेटिव उसमें कंपैरिजन के लिए एल्डर नहीं यूज कर सकते क्योंकि एल्डर के बाद देन वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे. कंपैरेटिव डिग्रीज में हम उसके साथ देन यूज करना जरूरी है. ठीक है, तो एल्डर के साथ देन यूज नहीं कर सकते. सो वी हैव टू यूज द वर्ड ओल्डर. लाइक सुरभि इज ओल्डर देन वंदना. ठीक है, तो सुरभि वंदना से बड़ी है. ठीक है, नाउ ओल्डर एंड ओल्डेस्ट डिनोट एज. ओल्डर और ओल्डेस्ट क्या दिखाते हैं? एज के लिए हम यूज करते हैं, एज दिखाने के लिए. इट कैन बी यूज विद पर्सन्स एंड थिंग्स ऑल्सो. थिंग्स का मतलब कितना पुराना है वो दिखाने के लिए. ओके, लाइक नीरज इज ओल्डर देन पंकज. नीरज जो है पंकज से बड़े हैं. मिस्टर मिश्रा इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर सोसाइटी. हमारे सोसाइटी में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है? सबसे बुजुर्ग कौन है? मिस्टर मिश्रा है. ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट पेयर ऑफ शूज आई हैव. ये जो है, ये जो शूज है ये मेरा सबसे पुराना जोड़ा शूज है. नाउ लेटर एंड लेटेस्ट डिनोट टाइम. लेटर और लेटेस्ट क्या दिखाता है? टाइम को बताता है. लैटर एंड लास्ट डिनोट पोजीशन. लैटर और लास्ट जो है वो पोजीशन को दिखाते हैं. चलो एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ. वी शैल बी गोइंग टू द हिल्स इन द लेटर पार्ट ऑफ अप्रैल. मतलब वी शैल बी गोइंग टू द हिल्स, हम पिकनिक के लिए हिल्स पे जाएंगे. कब? द लेटर पार्ट ऑफ द अप्रैल, मतलब सेकेंड वीक ऑफ या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में हम जाएंगे. मतलब सेकेंड हाफ, अप्रैल के सेकेंड हाफ में हम जाएंगे. लेटर पार्ट मतलब दूसरे हिस्से में. ठीक है, देन व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज. कौन सा अभी कौन सा न्यूज चल रहा है? लेटेस्ट न्यूज कौन सा चल रहा है? कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है ना. लेटेस्ट मीन्स अभी जो चल रहा है. Topalov and Anand entered the finals. The latter won the match. Topalov and Anand जो है वो चेस प्लेयर्स हैं, वो फाइनल्स में एंटर हो गए हैं और latter won the match. इसमें latter कौन है? आनंद. latter means सेकेंड नंबर. दूसरा कौन है इसमें? आनंद. आनंद won the match. तो हमें प्राउड फील होता है क्योंकि आनंद इंडियन है ना. विश्वनाथन आनंद वो जीत गए, तो
तो मतलब इधर क्या है, ये किस लिए बोल रहे हैं, लैटर मीन्स दूसरा, ओके, उसका पोजीशन बता रहे हैं। शी प्रीफर्स टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, कहाँ पे बैठना पसंद करती हैं ये, लास्ट बेंच पे, ये भी पोजीशन को शो करता है। लैटर एंड लास्ट जो है वो पोजीशन को शो करता है, ओके। नेक्स्ट, नियरेस्ट डिनोट्स डिस्टेंस and next denotes position. Who lives nearest to the school? See, who lives nearest to the school? घर के स्कूल के पास कौन रहता है, ओके। Her house is next to mine. Next means मेरे next मतलब मेरे पास वाले घर, ठीक है। Her house is next to mine. मेरे घर के बगल में ही उसका घर है। Comparative sending in OR like senior, junior, superior, inferior. Okay, these adjectives are followed by to, not by than. In comparative adjectives, we use than, isn't it? Adjectives के बाद than use करते हैं, लेकिन यहाँ पे than नहीं आएगा, than की जगह पे to आएगा, okay? He is senior to me by 3 years. मतलब he is senior to me by 3 years. He is superior to me 4 years. तो इधर सीनियर के साथ जो एडजेक्टिव्स यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में हम दैन नहीं यूज करेंगे, दैन की जगह पे क्या यूज करेंगे, हम टू यूज करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, एज एंड एज यूज्ड विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये जो है एडजेक्टिव्स इसको हम किसमें यूज करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। लाइक शी इज एज कनिंग एज फॉक्स, शी इज एज कनिंग एज फॉक्स मीन्स वो बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है लोमड़ी की तरह, ओके। नाउ सो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम नेगेटिव स्टेटमेंट में एज यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एज एंड एज बोथ आर एक्सेप्टेबल इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, लेकिन सो एज जो है हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव में नहीं। और एज एंड सो एज ये दोनों नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। She is not so cunning as you think. वो इतनी चालाक नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, okay? Her result wasn't as good as we had expected. Her result wasn't as good as we had expected. उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने उम्मीद रखा था, हमारे उम्मीद के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था उसका रिजल्ट। Now here are some words we can use only in a superlative adjective. We can use it as a superlative adjective. We can't use it in comparative form or positive form. Okay, like unique. Unique का हम more unique या most unique नहीं बोल सकते. Unique. It is unique in a way. Okay. She is unique in her character. Chief, complete, perfect, entire, full, ideal. These words we can only use in superlative degree. Okay? I hope all of you understood this adjectives.